gathering, communication, communication with patients and relatives, applied clinical knowledge. You are registrar on a list in performing a total abdominal hysterectomy on a 48 years old woman with heavy menstrual bleeding that has failed to respond to previous medical treatment. Patient is previous to SCAR with a BMI of 38. Intraoperatively, you encounter bladder, you encounter adhesion and suspect a bladder injury. You have 10 minutes to perform a structured discussion on how you will manage this patient from now on with the examiner. Okay. Sir, I have read the scenario and I am ready for the discussion. After the suspicion of a bladder injury, the first step I will take, I will stop further any surgery and I will inform my theater team, including the anesthetist, the scrub nurse, and other theater staff involved in the management, that the procedure may take longer. And I have encountered a suspicion of bladder injury. I will inform my on-call um, consultant, and I will take the assistance of my consultant. I will call for help, and I will also inform my ward uh, that the procedure can take a bit longer, and the other list procedures can be delayed or cancelled accordingly. After the arrival of my consultant, I will confirm the bladder injury through methylene blue that is passed through the Foley's catheter. After confirming the extent of the injury, my consultant will repair the bladder injury in the 2 layers, and if he requires, he will assess the injury, and if he requires the input of the urologist, the urologist will be called for the further handling of the bladder injury. And most likely in the trigone area, if the injury is in the trigone area, that should always be handled by a urologist. And after um, stitching the bladder in 2 layers, first layer will be continuously extramucosal tight cloy, and second bladder will be repaired in 2 layers, in first and second layer by the consultant. First layer will be extramucosal continuous stitches with Vicryl 20, and second layer will be also be um, stitched with continuous layers with watertight, making a watertight seal. And after completing this repair of the injury, I will confirm the watertight seal by again putting the methylene blue through the Foley's catheter to confirm if there is any leakage or not. And I will proceed with my hysterectomy, complete the procedure with the help of my consultant. And after that, uh, I will close the procedure, and shift the patient to the recovery room. And in the post-op care, I will give the patient antibiotics for next 5 IV antibiotics, and any painkiller, any thromboprophylaxis, because her BMI is higher, 38. I will go for the thromboprophylaxis, and I will come after completing the procedure. I will also debrief the patient and her attendants that I encountered an injury and how it was proceeded. And I will complete my notes, and I will complete the incident report form. And on clinical notes, I will clearly mention that I encountered an injury, and the Foley's catheter should be retained for next 7 to 10 days. And and I will write my plan for the follow-up along with the take-home antibiotics and painkillers, and further precautions for the thromboprophylaxis. And also, I will mention in the follow-up notes the catheter should be removed after 7 to 10 days. And after removing the catheter, the post-void residual volume should be measured. It should be less than 150 to 200 ml. And I will
सर यही है। थैंक यू सर, आई हैव कंप्लीटेड माई स्ट्रक्चर डिस्कशन। दैट्स इट बेटे। यस सर। अच्छा, आप इसका इंस्ट्रक्शन शुरू से पढ़ोगे? पेशेंट सेफ्टी, हम्म। information gathering, communication with the patients and relatives, हम्म। and applied clinical knowledge. ओके, आगे। इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई थी? आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी थी इसमें डॉक्टर साहब? Instructions, 10 minutes you have discussed in a structured discussion. How will you manage the patient from now onwards with the examiner? And how do we define discussion? By involving the examiner, से examiner को involve नहीं किया। आपने तो इसका मौका ही नहीं दिया। Did you let me ask you any question कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जी आपने सर। तो वो ऑस्पीक की किताब खोल ली और उसको लेके आप फ्रॉम वन टू एंड तक आप स्टार्ट हो गए। इज दैट गुड इनफ? नो सर। हाउ डू यू नो कि यही सवाल पूछा जाना चाहिए? मे बी यही सवाल हो, लेकिन हाउ डू यू नो कि यही सवाल पूछे जाए? जो हमारे एग्जाम में सवाल बनते हैं वो जरूरी तो नहीं वहां से कॉपी पेस्ट किया जाए। जी सर। सर ये स्टेशन आया था मेरे डे 4 था उस पर। नहीं नहीं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, आया होगा, मुझे उस पर नहीं बिल्कुल इतराज। लेकिन डू यू थिंक एवरी टाइम स्टेशन विल बी द सेम थिंग? हाँ। नो सर। क्या उसमें कोई क्लिनिकल सिनेरियो ऐड कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं? व्हाट डज द वर्ड डिस्कशन मीन्स? सर जहां तक मुझे याद है, जब लास्ट टाइम ये सिनेरियो आया था ना, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के बाद एग्जामिनर ने क्वेश्चंस किए थे और परफॉर्म पूछा था कि आप परफॉर्म करके दिखाएं, ब्लडर को किस तरह से रिपेयर करेंगे, फ्रॉम गाउनिंग ग्लविंग से लेके एंड तक रिपेयर देखा था। और उसके बाद फर्दर क्वेश्चंस हुए थे बाय द एग्जामिनर, तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो बेसिकली पहले उसमें आपको एक टास्क दी गई थी कि जो आपने परफॉर्म करनी थी और फिर उसके आंसर करने थे सवाल। तो आपका जी वो वाला सर। ख्याल था। जी जी सर। इसमें तो हमने वो वाली टास्क आपको दी नहीं। इसमें दिस वाज जस्ट क्वेश्चन एंड डिस्कशन। अब डिस्कशन कुड गो एंड नहीं, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये जो हम अभी तक जो पहला बैठ के क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको समझने में और उसको हिसाब लगाने में, हम वी आर नॉट गिविंग दैट टाइम टू आवरसेल्व्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी मिस्ड लॉट ऑफ थिंग्स। आपके पास ऑफिशियली 1 मिनट होता है जिसमें आपने बैठ के अपने आप को रिकम्पोज करना है, उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को एक या दो दफा पढ़ना है ताकि कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आप उसे मिस कर रहे हो। देन यू स्टार्ट ऑफ विद। अब उस आई कैन वेल अंडरस्टैंड कि ड्यूरिंग टॉक्स आपको सबको बड़ी जल्दी होती है, फिर आप कुर्सी पे होते हो, फिर आपको लगता है टाइम कम ना हो जाए और फिर आप जल्दी से स्टार्ट कर देते हो, यू जंप टू द आंसर्स। आंसर आपने जरूर करना है, टाइमली करना है, उसी टाइम पीरियड के अंदर करना है। लेकिन पहले सबसे फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और उसका आप प्लान बनाओ कि जी हमने इसको क्या जवाब देना है। अगर देयर इज अ वर्ड ऑफ डिस्कशन विद द एग्जामिनर्स यू हैव टू वेट एंड सी। यस मैडम, आप जाके कहो कि जी सर क्या आई हैव रेड द सिनेरियो, बताइए। अगर वो कहें कि जी आप स्टार्ट हो जाओ, तो आप जिस तरह वो एक जो आपने जवाब दिया है उसको हम जनरली अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं मोनोलॉग। यू अंडरस्टैंड व्हाट मोनोलॉग इज? जी सर, कुछ समझ आए। कि आपने खुद ही
अगले को मौका ही नहीं दिया कि वो बीच में कुछ इंटरव्यू करे या ना करे। एग्जामिनर जी तो सर। मेरे आराम से बैठा रहेगा। अब उसमें जी से सर अगर बिल्कुल। जो जो देखें ना, मैंने बीच में आपको इंटरफेयर किया ना रोका, ना आपसे कुछ पूछा। जी तो, सर। तो फिर अब आप जब इस किस्म का डिस्कशन वाला जो भी सिनारियो होता है या इंटरेक्टिव जो भी सिनारियो होता है, आप जाके पढ़ लेते हो, जब तैयार होते हो तो फिर आप कह देते हो कि ये शायद गेट दिस सिनारियो। और इवन अगर आप चाहो, आपका ख्याल है कि टाइम है, तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हो कि ये है, अब आगे बताएं। जिस पे कोई परफॉर्मेंस वाली है उस पर यू स्टार्ट डूइंग अ प्रोसीजर, कि जिस तरह आगे सामने रखा हुआ है, ब्लैडर रखा हुआ है, मीटर होल्डर्स हैं, ग्लव्स जो जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जाके आपने रिव्यू करना। अगर वहाँ पे गाउन ग्लव्स पड़े हुए हैं तो आपने वो सारा कुछ पहनोगे। अगर गाउन नहीं पड़ा हुआ तो आप उसे बता दो कि जी पहले मैं वॉशअप होंगी, अपने स्क्रब करने के बाद वापस आके फिर देन आई विल वेयर द गाउन, और उसके बाद फिर मैं ये ग्लव्स पहन के देन आई कम इन। अब कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन, मोर और लेस यू कवर्ड एवरीथिंग इसमें, एंड इट वाजंट बैड, इट वाजंट एक्चुअली बैड। मैं तो बल्कि क्योंकि अब वो हम उस में आगे हैं कि हमें है सिर्फ तीन चार चीजें थी जिसमें हमने यू हैव टू बी केयरफुल। नंबर वन, जब आप ये स्टार्ट करते हो ब्लैडर इंजरी के बारे में, यस यू कॉल योर कंसल्टेंट। अब वो उस कंसल्टेंट का भी आपको पता होना चाहिए कि किस सीनियरिटी में और कहाँ पे है। एंड एट दिस टाइम ऑफ प्रॉब्लम जनरली यू कॉल, एक तो जो आपका इमीडिएट वहाँ पे सीनियर ऑन प्रेमिसेस है, अदरवाइज जो सीनियर मोस्ट अवेलेबल है आप उससे बुलाओगे। और ये अभी क्लिनिकल सिनारियो था जिसमें आपको सस्पिशन हुई है, इट इज नॉट, क्या ना लिखा है कि क्लियर कट इंजरी होगी। नहीं सर, सस्पिशन सस्पिशन ऑफ इंजरी। हाँ, तो फर्स्ट इफ यू हैव अ सस्पिशन ऑफ इंजरी, फिर क्या करते हैं? कंफर्मेशन सॉरी? with the confirmation of the injury हाँ, with methylene blue. कंफर्मेशन, ओके। पहले कि अगर आपको वहां पे सस्पिशन है तो फिर आपसे कंफर्म करोगे। फर्स्ट ऑफ कोर्स यू विल से कि जो सीनियर है उसको आप बुला लें। और नंबर टू, कंफर्मेशन ऑफ मिथलाइन ब्लू। मिथलाइन ब्लू कैसे डालते हैं? सर थ्रू फॉलिस कैथेटर, जो उसका उसको पहले जो उसके बल में पानी होगा ऑलरेडी, फॉलिस डला हुआ होगा, उसको बाहर निकाल के दूसरी वाली साइड से वहां से मिथाइलिन ब्लू डाल देंगे 50 सीसी सिरिंज के थ्रू। व्हाई डू यू नीड टू टेक आउट द कैथेटर एंड उसका पानी क्यों निकालना है आपने बताया? आप रेट्रोग्रेड क्यों नहीं फिल कर सकते? जी सर, रेट्रोग्रेड भी कर सकते हैं। नहीं, वाई अगर तो आप वो कैथेटर का पानी निकालोगे वो तो सारा डिफ्लेट हो जाएगा। व्हाट विल हैपन व्हेंस द कैथेटर इज डिफ्लेटेड? इट विल कम आउट। कम आउट, हाँ जी सर, बाहर आ जाएगा। उसका तुम्हें फायदा कोई नहीं है। जब वो आपका डिपेंडिंग अपॉन, नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं, डबल कैथेटर वाला तो डालते ही नहीं, थ्री वे तो डालते ही नहीं है नॉर्मली। फॉर टेक्निक पुट अ सिंगल वे वाला, उसी से जहाँ से यूरिन का बैग लगा अटैच होता है उसी को डिटैच करके उसमें तीन चीजें आपने करनी होती है। नंबर वन, अगर पॉसिबल है तो उसी पोजीशन में, वरना कई बार आपको लिथोटमी बनानी पड़ जाती है। मेकिंग जी सर। श्योर कि आपका, मेकिंग श्योर जो उसके साथ आप ऐड करोगे कि आपकी स्टरलाइजेशन जो है वो क्या कहते हैं, वो अपना डिसइंफेक्ट, सॉरी, अनस्टरलाइज एरिया ना हो जाए। उसके लिए हमने इसको, अगर स्टॉक अथॉरिटी बनाना चाहते हो या आपने उसी पोजीशन के अंदर साइड से कैंसर का बैग निकाल के किसी को ग्लव्स बना के गन बना के फिर उसी के साथ वो सिरिंज 80 सीसी या 60 सीसी की सिरिंज लेके ब्लड नोजल वाली, उसी के थ्रू सलाइन पुश करते हैं। कितना सलाइन पुश करते हैं? ऑलमोस्ट 200 to 300 ml। वो डालते हैं, पर अगर आपको पहले में ही डालते हुए वहां से नजर आ जाए। नंबर टू, पहला काम, बिफोर यू पुट इन अ सलाइन, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आपको वो कोई होल नजर तो नहीं आ रहा। अगर इफ यू फाइंडिंग देयर इज सस्पिशन ऑफ होल,
you finding there is a suspicion of hole, and then you see कि उसकी length कितनी, it is less than 2 millimeters or it is more than that, उससे 2 सेंटीमीटर से बड़ी है या 1 सेंटीमीटर से बड़ी है या उससे छोटी है। और अगर 2 सेंटीमीटर तक है तो उसको तो आप आराम से जब पकड़ते हो देखते हो तो उसके थ्रू आपको कैंसर नजर आ जाता है, यू कैन सी द कैंसर। देन यू मेक श्योर कि आपने उस होल के अंदर कोई फिंगर नहीं मारनी या उसको डिस्टेंड और एक्सटेंड नहीं करना, जितना वो हो गया वो हो गया। दूसरा, जब भी आपको सस्पिशन है तो कोई अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही होती है उसको यू स्टॉप इट, यू विल नॉट वेट। आइदर उसको आप कोई ब्लीडर को पकड़ के उसको आपने कॉटराइज करना है, स्टिच करना है, या अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप उसको पैक कर दो। तीसरा, आप जब आपको सस्पिशन होती है तो यू आस्क समबडी कि लुक एट द कलर ऑफ द यूरिन, यूरिन क्लियर आ रहा है, यूरिन में कोई अपना ब्लड तो नहीं आ गया, या यूरिन की बिल्कुल जो वो जो आपकी है ट्यूबिंग खाली हो गई है कि ट्यूबिंग किधर है। दिस इज हाउ यू स्टार्ट विद जहाँ सस्पिशन होती है। एक तो वो है, अगर एक तो ये है कि हमें सामने नजर आ गया फिर तो कहानी खत्म होगी ना, फिर तो हमें उसके अकॉर्डिंगली मूव करना है। तो इसमें नंबर वन, अगर आपको सस्पिशन है यू कॉल फॉर हेल्प, यू आस्क द असिस्टेंट्स कि जी हाँ जी पे जरा, इससे पहले कि आप वहां तक पहुंच जाओ कि बाहर अनाउंस कर दो कि सारे शहर में कि जी ब्लैडर खुल गया, ब्लैडर खुल गया, ब्लैडर खुल गया, या अटेंडेंट्स को जाके बता दो कि जी पता नहीं अगली सर्जरी होनी है कि नहीं होनी। यू पहले उसको आइडेंटिफाई करते हो, और आइडेंटिफिकेशन के ये 3-4 पॉइंट्स हैं। यू लुक एट द कैथेटर, उसका बैग चेक करते हो कि जरूरी नहीं कि हर दफा उसमें ब्लड आए, लेकिन आ सकता है। जो अगर होल है उसको यू आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कितने सेंटीमीटर का है, उसके हिसाब से करिए। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द होल? For the input of the urologist, ओके, और and if there is any suprapubic catheter की जरूरत हो सकती है। हम्म और सर कितना रेस्ट दिया जाना चाहिए 7 to 10 days के लिए, जैसे रेस्ट देते हैं पॉलिस कैथेटर डालकर। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लेस देन 1 सेंटीमीटर के होते हैं, समटाइम्स इवन इफ यू जस्ट पुट इन अ कैथेटर एंड यू वेट, वो खुद ही खुद हील भी हो जाते हैं। ओके सर। तो उनको भी देन यू सी कि साइज वो कितना हो गया। तीसरा, जब आपका सीनियर आ जाएगा, हम इस सारे सिनारियों के अंदर डिपेंडिंग अपॉन उसका साइज ऑफ द होल एंड डिपेंडिंग दूसरी चीज उसमें देखते हैं कि वो जो इंजरी है एग्जैक्टली वेयर इट इज, डोम पे है, इंटीरियर सरफेस पे है, ट्राइगोन पे है, उसके साथ यूरेटर की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, द उसकी प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सर अगर ट्राइगोन पर है तो फिर यूरोलॉजिस्ट ही उसको सिक्योर करेगा, वो हमारी डोमेन में नहीं आता। वो क्यों? सर ट्राइगोन इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां से दोनों यूरेटर्स आ रहे हैं। हम्म और और इसके अलावा उसको यूरोलॉजी ज्यादा बेहतर स्टिच कर सकता है। ओके, उसमें अगर वो ऑरिफिस के बहुत पास है या उसने इन्वॉल्व कर लिया है उसको, फिर तो 110% आपका यूरोलॉजिस्ट आएगा, क्योंकि पहले वो उसकी डीजे स्टंटिंग करेगा और फिर उसको वो स्टिच करता है। इफ इट इज टू क्लोज टू द ड्राई बोन, जहाँ पे आपका सस्पिशन है कि आपने बाइट लेनी है और इट विल इन्वॉल्व द यूरेटर या इट कैन इन्वॉल्व द ऑरिफिस ऑफ द यूरेटर, फिर अब वो कहीं बंद ना हो जाए आगे, क्योंकि अगर वो कुछ आ जाता है तो फिर क्या होगा? अगर हम यूरेटर को बंद कर देंगे स्टिच लेके, तो वो यूरेटर सर हाइड्रोनेफ्रोसिस डैमेज हो हो जाएगा। जाएगा, क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस। ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, पीछे से यूरिन नहीं आएगा तो पीछे से हाइड्रोनेफ्रोसिस और किडनी को डैमेज हो जाएगा। For those days, then for those patients, it's very close to that, so then we put in a DJ stunt. अगर वो उससे दूर है, you can, if you can identify where the ureters are opening, then of course you can stitch it.
स्टिच आपने खुद ही बता दिया कि वी हैव टू डू इट विद dissolvable sutures. Generally we can use 30 Vicryl, और वो आपने लेयर्स आपने बता दी कि इन डबल लेयर पे हम करके उसे करेंगे, और करने के बाद दोबारा हम उसको रीचेक कर सकते हैं बाय पुटिंग इन मिथाइल ग्रुप। अगर हमारी सस्पिशन है, हमने डाई डाली है, ब्लडर भर गया है और इसमें से कोई लीकेज नहीं होती, व्हाट विल वी डू? Sir, the procedure is complete. The repair is completed. I will complete my whole hysterectomy under the supervision of my consultant and close the patient. And after that, I will debrief the patient and her attendants also. Okay. Up now, coming back to one of the important point. एक नंबर वन, इन सच केसेस जो आपके होते हैं जिसमें प्रीवियस सर्जरीज हैं या प्रीवियस सेक्शंस हैं, उसमें प्री ऑप आपने इन्फॉर्म पेशेंट को किया होता है ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन विच कैन अकर, क्योंकि ब्लैडर कई बार बैडली एडहेरेंट होता है टू द यूट्रस। और जब आप इसको डीप ब्रीफ में जाओगे तो उन्हें कहोगे जी ये था इसलिए हमने पहले आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया था क्योंकि इसमें परसेंटेज चांसेस की है, एंड अनफॉर्चुनेटली हैपन। तीसरा, बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ रजिस्ट्रार, अभी आपने जाके अपने आप को भी रिफ्लेक्ट करना है कि आपको किस स्टेज पे अपने सीनियर को बुला लेना चाहिए, विच इज जनरली जब आप देखो या एनकाउंटर करो कि जी ब्लैडर सो इट्स बैडली एडहेरेंट, इट कैन बी डैमेज, तो एज अ रजिस्ट्रार इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसी स्टेज पे ताकि उसको किसी सीनियर को बुला दो, ताकि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है वो आपको बेहतर आके गाइड कर सकता है कि क्या करना है, हमने किस तरह लेके जाना। उसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं टू अवॉइड ब्लैडर इंजरी। नंबर इजीएस्ट वे इज कि आपने जब प्रीवियस सेक्शंस वालों की साइड से जाना है, यू डोंट गो फ्रॉम द मिडल ऑफ द अपना क्या कहते हैं ब्लैडर उठा के दरमियान से नहीं कभी जाते, यू ऑलवेज कम फ्रॉम द साइड्स। जहाँ से आपने ये ब्रॉड लिगामेंट खोलना है उसको ओपन करके, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश एरिया होता है तो जनरली वहाँ पे स्पेस मिल जाती है, वहाँ पे करेंगे तो इट्स इजियर फॉर यू टू डू डायसेक्शन, और वहाँ से आप ब्लैडर को आइडेंटिफाई करके करोगे। जिनकी पहले ये सर्जरीज हुई हैं, दीज आर दोज पेशेंट, जब तक पेशेंट का ब्लैडर एट द साइड ऑफ द इंसिजन लगा हुआ होता है, आप उसको ये जो हम यूज करते हैं स्पंज ऑन स्टिक से लेके उसको नीचे पुश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ गॉज, या वो पुश द ब्लैडर डाउन, वो नॉर्मली हम इसमें नहीं करते, क्योंकि अगर उसकी पोस्टीरियर लेयर वहाँ चिपकी होगी या बैडली स्टक होगी, जब आप पुश करते हो तो इंटीरियर लेयर नीचे चली जाती है, पोस्टीरियर लेयर वहीं रह जाती है। तो वहां पे जनरली रिकमेंडेड आपकी शार्प डायसेक्शन होती है। ये दो चीजें यू हैव टू सिट डाउन एंड देन दोबारा इसे रिकंसिडर करके इस किस्म के पेशेंट्स में उसमें आप करोगे। एंड इन द एंड आपने अगर लीक हो भी गई है, इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, नॉर्मली अगर नजर आ गया तो वी कैन पुट इन वन स्टिच। अगर इट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर तक है तो फिर इट इज बेटर कि आप उसको 2 लेयर्स में करोगे। एंड जनरली ये वाले हमारे पास नॉर्मली इंजरी जो होती है ट्राइगोन पे कम होती है, हमारे पास ऊपर ब्लैडर के डोम पे, क्योंकि वही चीज अटैच होती है टू द स्कार, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। वो करके और एंड में अपनी स्टेट में हमने कंप्लीट करके उसको दोबारा रिव्यू करेंगे, पेडिकल्स को देखेंगे, और इन द एंड विल पुट इन अ ड्रेन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड एंड वी कीप द कैप्सूल इन। एंड ऑफ कोर्स आपने अटेंडेंट्स को बता दिया, पोस्ट ऑपरेटिवली जब पेशेंट अपने सेंसेस में आएगा उसको आप जाके एक्सप्लेन करोगे जी हाँ जी आपकी प्रीवियस सर्जरी की वजह से अनफॉर्चुनेटली ये हो गई है, लेकिन वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट। एंड नंबर टू, द ओनली थिंग व्हिच वी हैव टू डू इज कि हम आपको अपना कैचर आपका बाकी लोगों से ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगा, दैट कैन बी फ्रॉम 7 to 10 days। और जब कैंसर आपने इसको आउट करना है तो उसमें देर माइट बी अ रिक्वायरमेंट कि जहाँ पे आप उसको क्या कहते हैं वो क्लैंपिंग एंड डी क्लैंपिंग करके, ताकि ब्लैडर की दोबारा न्यूरोलॉजिकल उसका इफेक्ट जो है दोबारा रीस्टार्ट हो जाए, एंड देन वी कैन डू दैट। Intermittent clamping. इंटरमीडिएट क्लैपिंग जो करते हैं उसमें बेसिकली यू क्लैम्प द ब्लैडर कैथेटर एंड देन यू वेट टिल द पेशेंट आस्क कि जी हाँ जी मुझे अब यूरिन फील हो रहा है आते हुए, देन यू रीओपन एंड देन यू डू दैट अगेन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। 2-3 दफा जब हो जाता है तो देन यू रिमूव द कैथेटर, और फिर पेशेंट जाके एक बार यूरिन पास कर ले तो वी कैन सेंड हो। लास्ट बेट जो हम सारे भूल गए कि अगर इस तरह की इंजरी हो गई है
you लास्ट एनेस्थेटिस्ट और योर कोलीग कि इसको एंटीबायोटिक कौन सी थी, क्योंकि दीज आर द पेशेंट जिसमें हमने ग्राम नेगेटिव कवर देना है। अगर तो उसमें ग्राम नेगेटिव कवर है दैट इज फाइन, अदरवाइज वी विल ऐड ऑन टू एंटीबायोटिक जो उसके लिए जरूरत है, एंड सो सो इसमें अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लो, वरना देना। सर जी। कितने सेंटीमीटर की सर इंजरी को वैसे ही छोड़ सकते हैं? लेस देन लेस 1 देन सेंटीमीटर? लेस देन 1 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें भी फिर आपको कैथेटर जो है वो 10 days के लिए रखना पड़ता है। दैट्स टोटली योर चॉइस। पर अगर नजर आ जाए तो इट इज बेटर कि यू डू। वो ऐसा होता है कि आपने डाई डाली, वो निकल आई, बिल्कुल हल्की सी निकली, कहीं से नजर नहीं आ रही, तो यू जस्ट पुट इन अ कैथेटर एंड यू वेट। नॉर्मली दे डू वेरी वेल। अस्सलाम वालेकुम सर। स्ट्रक्चर डिस्कशन में जब हम कहेंगे वी आर रेडी फॉर स्ट्रक्चर डिस्कशन, उसके बाद सर हमने खुद से बताना शुरू नहीं करना, हमने पहले एग्जामिनर का वेट करना है या हम स्टार्ट कर देंगे सिनेरियो खुद से बताना? बेटा जनरली अगर लिखा हुआ है डिस्कशन विद एग्जामिनर तो आमतौर पे देन यू लेट द एग्जामिनर, आमतौर पे लेट द एग्जामिनर टू आस्क यू द क्वेश्चन कि हाँ जी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज जनरली कि जी हाउ विल यू प्रोसीड नाउ, इफ देयर इज सस्पिशन हाउ विल यू प्रोसीड, फिर देन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट। देखो सर इसमें भी कुछ एग्जामिनर्स कह रहे थे कि जिधर एग्जामिनर को प्रोब करना पड़ता है तो स्ट्रेट अवे आपके 3 नंबर कट जाते हैं, तो सर इस डर के मारे फिर हम पहले ही खुद ही वो बोलना शुरू कर देते हैं। बेटा सॉरी समझ नहीं है, फिर से रिपीट करो, सुनाइए। सर कुछ एग्जामिनर्स ये बता रहे होते हैं वर्कशॉप में कि वेयर एग्जामिनर प्रोब यू, जिधर उसने आपको टोका या एनीथिंग एल्स बोला तो आपके स्ट्रेट अवे 3 नंबर कट जाते हैं, तो सर इसलिए हम खुद ही से बोलना शुरू कर देते हैं फिर। मुझे दोबारा समझाओ, ये मुझे सिनेरियो समझ नहीं आया। सर कुछ वर्कशॉप्स में एग्जामिनर्स बता रहे होते हैं कि सिनेरियो में या जो भी आपका स्टेशन होता है उस पे अगर एग्जामिनर को बीच में आपको टोकना पड़े या आपको एनीथिंग एल्स बोलना पड़े तो उसमें आपके स्ट्रेट अवे 3 नंबर कट जाते हैं सर, बेटा तो मैंने तो इसलिए सर हम। नहीं नहीं, देखो मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम लिए हैं उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस में कि अगर हमें बीच में उसको रोकना पड़े तो आप उसके 3 नंबर काट लो। आई हैव नॉट रेड इट एनीवेयर, गो टू दैट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका स्टेशन किस टाइप का है। अगर आपका कोई परफॉर्मेंस का स्टेशन है जिसमें आगे कोई डमी पड़ी हुई है या ये ब्लैडर पड़ा हुआ है या कोई और चीज पड़ी हुई है, तो उसमें फिर आप अपनी क्लियरिंग स्टारी करके इसको स्टार्ट कर दोगे। यू विल नॉट वेट फॉर द एग्जामिनर टू आस्क यू कि जब शुरू हो जाओ। अगर वहां पे लिखी हुई है डिस्कशन, डिस्कशन कब होती है? डिस्कशन तब होती है जब दो बंदों के आमतौर पे कोई क्वेश्चन पूछे फिर आप आंसर करो। क्या मतलब डिस्कशन सिंगली तो नहीं होती कि आपने बैठ के वो किताब खोल ली और शुरू हो गए फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि मैं सिर्फ इसमें पूछता कि जी हाउ विल यू, सस्पिशन होगी डैमेज की तो आप मुझे बताओ तो उसको कंफर्म कैसे करो। दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। उसमें वही आ जाता है कि जी हाँ जी, कि अगर मुझे सस्पिशन है विल कॉल फॉर हेल्प, और उसके बाद मैं आगे उसका आइडेंटिफाई करना कोशिश करूंगी। अगर मुझे विजिबली नजर नहीं आता तो विल लुक एट द कैचर, उसकी ट्यूबिंग, उसका यूरिन कितना आया है, एंड सो ऑन, एंड आगे करके उसके हिसाब से देख लेंगे आइडेंटिफाई। उसमें जनरली जब आपने आइडेंटिफाई करना होता है तो देन यू आइडेंटिफाई द ब्लैडर बल्ब, कैथेटर कहाँ पे पड़ा हुआ है अंदर। उसी को देख के देन यू फिगर इट आउट कि हाँ जी मेरा ब्लैडर ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमने किसी जगह से इसको कोई निक तो नहीं दे दी। कई बार वहां से यूरिन निकलता हुआ नजर आ जाता है आपको। वो जब यूरिन वो नॉर्मली तब होता है जब इंसियन या आपने ज्यादा उसे खोल दिया। तीसरा, ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा कि उस टाइम पे जो अगर कोई फलाना खासा, और ये सब चीजें कब होती हैं जब वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड वगैरह हो, आपको प्लेन ठीक ना मिल रहा हो, और आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि वेयर वी हैव टू गो, देन यू स्टॉप। यू स्टॉप, पहला स्टेप है कि यू स्टॉप द ब्लीडिंग, यू लुक अगेन, री, और फिर से करोगे। एंड इसमें जो इंजरी में है मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसकी लोकेशन है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरेटर्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूरेटर्स है या उसको सस्पिशन है, फिर आप यूरोलॉजिस्ट को बुलाओगे। अदरवाइज अपने सीनियर को बुला के जनरली दे डू द ब्लैडर रिपेयर ऑन देयर ओन अगर है, और बाद में आके उसका कवर करके देखिए। सर ये बता दें मिथाइलिन ब्लू कब डालना है नॉर्मल सलाइन? अगर आपको नजर नहीं आ रहा वो होल एंड यू स्टिल थिंक इट इज अ लीकेज, तो फिर देन ऑफ कोर्स यू कैन।
आमतौर पे हेलो वो अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि सर फिर ब्लैडर उसमें, रिपेयर के बाद कैथेटर के रिमूवल और का उसमें प्रोटोकॉल अगर कई बता बार दें। अगर मतलब ब्लू नहीं भी है तो आप रेट्रोग्रेड फिल कर सकते हो ब्लैडर को विद नॉर्मल सलाइन या किसी और के साथ भी। वो जैसे ही फिल होता है ब्लैडर नजर आ जाता है उसका लो, और वहां से लीकेज हो तो फ्लूइड निकलता नजर आ जाता है। ब्लू हेलो का फायदा ये होता है कि वो इजीली आइडेंटिफाइडेबल के इस जगह से यहाँ से निकली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और ऑफ कोर्स हम इसको रिपेयर के बाद अगर वो ट्राइगोन या इसके बाद था, उसके हमें इनपुट एंड आउटपुट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एंड अगर रिक्वायर्ड है तो सेकेंड डे के ऊपर आप जाके उसका स्कैन करके जस्ट फिगर इट आउट कीजिए उसको हाइड्रोयूरेटर या कोई और चीज़ तो नहीं हुई हुई, उसका एक स्कैन भी कराओ बिफोर यू सेंड द पेशेंट। सर पेशेंट का सर बीएमआई ज्यादा है तो फ्लेक्सेन वगैरह का रोल होगा, अर्ली मोबिलाइजेशन एंड फ्लेक्सेन। जी बेटा, सॉरी मैं समझ नहीं आई। पेशेंट का वेट ज्यादा है तो अर्ली मोबिलाइजेशन एंड फ्लेक्सेन का रोल होगा बिल्कुल, इसमें। वो तो जिसका रूटीन है, यस ऑफ कोर्स दैट इज नॉट रिलेटेड विद योर ब्लैडर रिपेयर, लेकिन उसमें तो वो तो इज रूटीन जो आपने उसमें करना है उसमें होगी। सर जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। प्रोटोकॉल भी बता दें। जी सर एक बात पूछनी थी, क्वेश्चन। सर इस प्रोसीजर को फिर सबसे पहले उसको स्टॉप करेंगे और ब्लैडर रिपेयर के बाद हम हिस्टेक्टमी कंप्लीट करेंगे। बेटा, आप प्रोसीड नहीं करोगे। एंड अगर आपकी है, आमतौर पे आप उसको पहले रिपेयर करना बेहतर होता है। उसकी रीजन ये है कि वो जितना वहां से यूरिन बाहर आएगा वो सॉइल करता रहेगा आपकी सारी फील्ड को। सर कुछ कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि पहले जो है ना आप स्टॉप करें, अपना यूरोलॉजी को इन्पिट करें या हिस्टेक्टमी कंप्लीट करने के बाद आप करें इसको रिपेयर। तो सर क्या बोलना चाहिए? नहीं, अगर आपका आइडेंटिफाई हो गया है, अगर आपका आइडेंटिफाई हो गया है, ये दोनों चीजें ही कर सकते हो एक्चुअली, यू कैन। लेकिन दोनों डिपेंडिंग अप्रोच ठीक। अगेन गेन कहाँ पे है, किधर है, अगर आपका ख्याल है कि आपको प्लेन प्रॉपर मिल गया है और आपने आइडेंटिफिकेशन कर ली है, तो उसको आप ठीक आर्टरी लगा के साइड पे करके बाकी यू कैन कंप्लीट योर हिस्टेक्टमी, ताकि बाकी आपकी फील्ड सॉइल ना हो, फिर यू कैन ठीक है। प्रोसीड। और सर इसको क्लैंप अनक्लैंप करना है बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले? कुछ लोग नहीं कहते हैं नहीं बेटा, करना चाहिए, नहीं अल्ट्रासाउंड से देखो, देखना चाहिए रेजिडुअल यूरिन को। नहीं clamp discharge बेटा, you not keep the patient for in the hospital for 10 or 15 days। वो तो आपने डिस्चार्ज जी कर दिया ना उसको, फिर उसके बाद वापस उसे बुलाओगे जब आपने उसको कैथेटर रिमूव करना। ठीक है। सर उससे पहले क्लैंप अनक्लैंप करें या इसका अल्ट्रासाउंड करें? कुछ कहते हैं मैं कि अल्ट्रासाउंड करना दैट्स चाहिए दैट्स योर पर्सनल चॉइस। अल्ट्रासाउंड में क्या देखोगे आप? कि वॉल्यूम वगैरह तो नहीं है, यूरिन तो नहीं है, पोस्ट रेजिडुअल कोई किसमें? यूरिन वगैरह तो नहीं रहता किधर? ब्लैडर में? नहीं, जब आपने कैथेटर डाला हुआ है तो अंदर यूरिन कैसे रहेगा बेटा? तो कैथेटर निकालने की बात करोगे आप? यस सर। मुझे समझ नहीं है बेटा। कैथेटर सर जब मतलब अंदर होगा तो फिर रेजिडुअल यूरिन की बात मैंने कर रहे ये सर एक हैं। टीचर रेजिडुअल ने ये बोला था कि इसको जी, क्लैंप अनक्लैंप नहीं करना इसको। क्यों नहीं करना? ये मैंने सुना था सर, यही पूछना था, कंफर्म करना था। नहीं, मुझे तो नहीं यानी पता कि कि उसकी, वेट करें, पुलिस रिमूव करके वेट करें, पेशेंट करता नहीं करता, लेकिन क्लैंप अनक्लैंप ना करें। नहीं ये भी कर सकते हो आप। एक प्रेशर आएगा, नहीं, ये देखो ना बेटा, अगर तो पेशेंट कई बार पास कर लेता है खुद जाके यूरिन, पास आपने करें, ठीक क्लेम है। किया तो दैट इज परफेक्टली फाइन, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको अगर रिटेंशन हो जाती है या उसने यूरिन नहीं पास किया हुआ, तो फिर देन यू हैव टू डू इट, ताकि वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो इतने दिनों के बाद ड्रेन होता जा रहा है, उसको समटाइम्स इट टेक्स टाइम कि वो दोबारा फंक्शन पे आए। ओके आमतौर पे ओके अगर हमारा छोटा सा कोई डेंट होता है उसमें नहीं करते, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें हमने 14 दिन या उससे ज्यादा वाला हमने कैथेटर रिटेन किया हुआ है, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसमें कर दें तो उसमें हर्ज नहीं। ओके जो सर, नहीं थैंक यू। करते उनका डर ये है, मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं कि कई बार क्लैम्प करने से ब्लैडर बहुत ज्यादा डिस्टेंड हो जाए तो फिर वो जो आपकी रिपेयर है वो वीक हो जाती है या वहां से कोई यस सर, यही बेहतर। बात। जी ठीक। सर। वरना जब, लेकिन बात ये है कि अब तो आप जब कैथेटर निकाल दिया तो उसने ब्लैडर डिस्टेंड तो होना ही होना है। यस ब्लैडर तो डिस्टेंड होना ही होना है। तो अगर वो गिव वे करना होगा तो वो तो जब ब्लैडर ने उसने पेशेंट ने खुद निकाल दिया तो फिर भी हो सकता है। पर ये दोनों ओके चीजें इट ऑल डिपेंड्स ऑन, ये पर्सनल है, लेकिन जो मैंने किताब में पढ़ा हुआ है उसमें नॉर्मली वो कहते थे कि जी अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो पोस्ट बॉयड यूरिन आप देख सकते हो, जो आपने लिखा हुआ है वैसे। आई रेड दैट। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मुझे पूछना था, जैसे कि हम इंसिडेंट फॉर्म फिल करेंगे आफ्टर ऑल दिस इंसिडेंट, पेशेंट
और अटेंडेंट की काउंसलिंग के बाद। तो जी क्लिनिकल गवर्नेंस में कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें कवर करने हैं? बिकॉज आई यूज टू फॉरगॉट, मुझे ये सही से समझ में नहीं आते व्हेन एवर आई रीड दीज पॉइंट्स। तो हमें कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करने हैं रिगार्डिंग क्लिनिकल गवर्नेंस ऑफ दिस इंसिडेंट? बेटा, इसमें नंबर 1, एक तो ये मेंशन करोगे कि क्योंकि पेशेंट वाज ऑलरेडी हाई रिस्क फॉर दिस काइंड ऑफ ये प्रोसीजर के लिए, कि उसका बीएमआई ज्यादा था, उसकी pelvic सर्जरीज हुई हुई थी, तो उसमें ड्यूरिंग दिस वो ब्लैडर वाज सो एडहेरेंट कि उसमें हमें करना शुरू करना पड़ गया। तीसरा, आप उसमें ऐड कर सकते हो कि जी के सजेशन के अंदर अगर आप डालना चाहो कि जी नॉर्मली अगर इस किस्म के हैं तो जो रजिस्ट्रार लेवल का पेशेंट जो है हमारा लेवल का जो भी अवेलेबल डॉक्टर है, देन उसके साथ कोई ना कोई सीनियर कंसल्टेंट जरूर होना चाहिए अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द सर्जरी, जो उसको आइदर असिस्ट कराए या उसके साथ करे, ताकि इसकी जो डैमेज है वो है। तीसरा कि जी कि हमें एज अ सर्जन पता होना चाहिए कि कब हमने रोकना है, कि इसका फर्स्ट असिस्टेंट कौन होगा, सेकंड असिस्टेंट कौन होगा, उसके हिसाब से हो। यू डू अंडरस्टैंड, जितना आपके इस किस्म के अगर केसेस होते हैं और उसमें अगर आपके साथ सीनियर बंदे वॉश अप हुए हों तो उसका चांसेस कम हो जाते हैं। नॉट दैट कि प्रोफेसरों से ब्लैडर नहीं खुलते, हमसे अभी भी खुल जाते हैं, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन उसमें फिर हमने कब इंटरवीन करना है या क्या करना है, उससे क्या लर्न करना है, उसमें देन वी हैव टू सी। इसी में मैं ये बता दूं, जब आप सिजेरियन कर रहे होते हो, अगर आपका सिजेरियन हो जाती है, मुझे अभी इसने किसी ने पूछा था, क्योंकि उसमें एक वन ऑफ दोज टाइम्स हैं कि क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो अगर आप आइडेंटिफाई भी कर लो कि ब्लैडर खुला हुआ है, उसमें फिर देन वी डू नॉट वेस्ट टाइम बिकॉज पेशेंट इज ब्लीडिंग, कि हम इसकी पहले ब्लैडर की रिपेयर करें या इंतजार करें। उसमें देन हम उसको जितना मैक्सिमम डायसेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ब्लैडर खुल जाए तो उसकी डायसेक्शन बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाती है। तो उसको डायसेक्ट करके पहले चेक भी करेंगे, देन वी विल गो फॉर रिपेयर ऑफ द ब्लैडर, क्योंकि उसमें अगर पूछे भी तो उसमें आप कह सकते हो कि जी कि इसमें इतनी हमें अर्जेंसी या होती है कि तब तक हम वी कैनॉट वेट कि जी पहले आराम से ब्लैडर को रिपेयर करें। Yes, after doing that, storing your pedicles, then you of course go back and then you start repairing the bladder. या तब तक आपने अपने सीनियर को या यूरोलॉजिस्ट को बुलाना है, that's another story. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ब्लैडर रिपेयर कर लिया, उसको हमने रिकन्फर्म भी कर लिया दोबारा मिथिलीन ब्लू डाल के, तो सिस्टोस्कोपी की नीड तो नहीं है ना? क्योंकि एग्जामिनर का क्वेश्चन था कि उसके बाद हम सिस्टोस्कोपी करेंगे। तब की नहीं करते, जहाँ आपको सस्पिशन है वहां पे करते हो। और डू रिमेम्बर दैट जब आप सिस्टोस्कोपी करते हो तो ब्लैडर दोबारा डिस्टेंड हो जाएगा। जी सर, यही क्वेश्चन था कि दोबारा डिस्टेंड हो जाएगा तो फिर कैसे हमें पता चलेगा? नहीं, देखो आपने उस टाइम पे उसको सिर्फ वाटर टाइप करना है, एंड वो मिथलाइन ब्लू अगर आपने 200 से 300 ml तक डाल दिया तो दैट वेरी वेल काइंड ऑफ डीमार्क्स सी, और यू कैन सी योर रिपेयर लाइन। अगर उसमें से लीकेज नहीं हो रही, वो नहीं। द ओनली पॉइंट दे ट्राई टू मेक इज कि कोई और इसके साथ दूसरी इंजरी जो है वो मिस ना हो जाए। वो भी आप कह सकते हो कि जी अगर कोई सेकंड इंजरी इसके साथ होगी तो जब हम दोबारा रिकन्फर्म करेंगे तो वो वहां से लीकेज नजर आ जाएगी, फिर हम उसको भी रिपेयर कर लेंगे। ठीक है सर। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि पेशेंट 10 डेज के बाद आती है फॉलोअप पे, तो हम सिस्टोग्राम का कोई रोल है कि रेजिडुअल डिफेक्ट देखने के लिए? क्योंकि कुछ कुछ फॉरम पे मेरा इसकी बात होती है। मतलब हमने वैसे किया नहीं कभी, मैंने पढ़ा भी नहीं कि दोबारा। हाँ, पेशेंट को कोई सिम्टम्स होते हैं वो देखो, अगर तो उसमें लीकेज होगा ना वो तो जी प्रेजेंट कर सर। देगी विद पेरिटोनाइटिस इन जी ऑल। जी ठीक है सर। अगर हमने उसका 14 दिन तक कोई यूरेटर बांध दी है साथ या ऑरिफिस को बांध दी है, वो फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस और उसके साथ प्रेजेंट करेगी डेफिनेटली। डिपेंड्स ऑन पेशेंट सिम्टोमेटोलॉजी कि अगर पेशेंट हाँ, आती है तो बट ठीक है नॉट सर। रूटीनली, आई डोंट थिंक सो रूटीनली इट शुड बी डन। ओके सर, थैंक यू। सर सर मेरा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमारे एग्जाम में एक ना यूरेटर इंजरी का क्वेश्चन था, तो जी सर उसमें ना यूनिलेटरल यूरेटेरिक लाइगेशन हुई थी ना। तो सर मैंने इसमें ये पूछना है कि एक तो हम हिस्ट्री और साइन और सिम्टम से भी पता लगा लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर सिस्टोस्कोपी विद डाई हमने करना है अगर यूरेटर हमने लाइगेट किया हो? नहीं, ये बेटा आप इंट्रा ऑपरेटिवली पूछ रहे हो कि पोस्ट ऑपरेटिवली पूछ रहे हो? पोस्ट ऑप सर, पोस्ट ऑप।
पोस्ट ऑप। देखो ना, पोस्ट ऑप अगर आपका है तो फिर आप क्या चीज कराओगे? IVU, जी CT IVU करा लोगे विद जी कंट्रास्ट। सर। इट कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि जी कि आपका देखो सिस्टोस्कोपी के साथ तो आप यूरेटर की लाइगेशन नहीं नजर आती ना। उस सिस्टोस्कोपी में क्या नजर आएगा? उसमें तो आपको सिर्फ ब्लड नजर आ रहा है या उसके ऑरिफिस नजर आ रहे हैं। ठीक है। और तो उसमें सर जब आप इसको हमने एक मिनट बेटा, सॉरी। और उसमें सिर्फ एक चीज आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो कि जब आप सिस्टोस्कोपी कर रहे होते हो तो उन ऑरिफिस में से अगर यूरिन का जेट आ रहा है, दैट मीन्स कि उस साइड पे कम से कम वो लाइगेशन या कंप्लीट टीयर ऑफ नहीं हुआ हुआ, कि ओपन है। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन सर डू। सर इसमें हमने इस तरह बताना है कि हमने पहले पेशेंट के रीनल फंक्शन टेस्ट चेक करने हैं, उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड के यूबी की तरफ जाएंगे और सीक्वेंस वाइज पोस्ट ऑप में, और फिर हम सीटी विद कंट्रास्ट करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशन। यस, मेरा ख्याल है पहला आपका जो है बेसलाइन आपके यूरिया क्रिएटिनिन तो वैसे ही होने चाहिए अगर आपका है। और अगर वो तब मैं सॉरी पहला मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगा। अगर उसमें कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस साइट का आ जाता है तो उसके बाद फिर आप इसका उसे कंफर्म करने के लिए उसका वो कराओगे यूरिया क्रिएटिनिन। या क्योंकि यूरिया क्रिएटिनिन आपका कंट्रास्ट के लिए वैसे ही प्री रिक्विजिट है। अगर वो नॉर्मल है तो फिर आप उसका CT कराओगे और उसमें आप आइडेंटिफाई कर लेते हो उसमें कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो टाई हुआ है या ब्लॉक हुआ है। एंड देन उसके अकॉर्डिंगली देन यू मैनेज कि उसका एंड टू एंड होना है, कि उसका ये वरीज फ्लैप बनना है, कि उसको री इम्प्लांट करना है इनटू जल्दी करना चाहते हैं। सर नेफ्रोस्टमी विद डिलेड रिपेयर नहीं करेंगे अगर पेशेंट लेट प्रेजेंटेशन के साथ है, सेप्टिक है? सॉरी बेटा। सर पेशेंट अगर वार्ड में है, लेट उसकी इंजरी आई है, सेप्टिक है, तो उसको एंटीबायोटिक देके नेफ्रोस्टमी विद डिलेड रिपेयर नहीं करेंगे? ट्यूब डाल के नेफ्रोस्टमी, ये यूरो आप को कॉल किसकी बात, करके। यूरेटर की बात कर रहे हो कि आप यूरिटर, जी जी सर, यूरिटर इंजरी की बात कर रही यूरेटर इंजरी को डिले? देखो, अगर तो बहुत ज्यादा सेप्सिस अंदर आ गया है फिर नेफ्रोस्टमी करके आप उसको वेट कर सकते हो कि जी आप उसको टाइम दे और उसके हूँ। बाद यस सर, कर। यूरोलॉजी को वरना लाइजॉन करके। अगर पेशेंट सेप्टिक नहीं है और सिर्फ उसका हाइड्रोयूरेटर है और पेशेंट को साथ उसकी बैक फ्लो की वजह से किडनी का है, बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज कि आपने वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीज करना है ताकि आपका मिनिमम किडनी का डैमेज हो या वो ठीक हो जाए। और उसके बाद आगे वाला जो, क्योंकि जो इतनी वहाँ पे सर्जरी हुई हो तो नॉर्मली अगला वाला जो दूसरा वाला एंड होता है वो मिलता नहीं है, या वहाँ पे जाके इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। इट इज सो फ्राइबल। उसमें फिर वो देन जस्ट टू ये PCN कर देते हैं। और PCN करने के बाद जब वहां से अंदर हीलिंग और सारा कुछ, क्योंकि जब यूरिन बाहर आना शुरू हो जाएगा, नॉर्मली अगर आपने सिर्फ उसको टाई किया हो ना तो अंदर इतनी इन्फेक्शन नहीं होती। इन्फेक्शन आपकी तब होती है ज्यादा जब अंदर उसकी लीकेज ऑफ यूरिन हो रही है, पेरिटोनाइटिस तब कॉज होता है। वो अगर वो यूरिन यूरिन लीक करेगा, आपने, इरिटेट करेगा पेट्रोलियम को। हाँ फिर इरिटेट करेगा। अगर वो सिर्फ ब्लॉक हुआ हुआ है आगे तो आमतौर पे फिर वहां पे वो सेप्टिसीमिया या इस किस्म की चीजें नहीं होती। ओके। एक्सक्यूज मी सर। सर सर जी, सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये ब्रेस्ट रिपेयर में सर कैथेटर कितने डेज तक हम रखेंगे? 7 to 10 डेज के 10 to 14 डेज? वो आप पे डिपेंड करता है बेटा कि आपको अपनी रिपेयर उसका साइज उस पर कितना लेना है। एव एन एवरेज 10 to 14 डेज इज द रीजनेबल टाइम जिसमें आप मतलब जी यू सर। कैन टेक इट आउट। और ब्लड बड़ी सर मैंने इतनी जगह पे है। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सर हम ये मेटालिन ब्लू जब डालते हैं ना तो सर ये हम डाइल्यूट करते हैं नॉर्मल सलाइन के साथ? बेटा आपने सिर्फ कलर देखा है ना उसका, वो इतनी भी डाइल्यूट ना हो कि उसका रंग नजर ना आ रहा हो और इतना डार्क भी ना हो कि वो अंदर जाके इरिटेट करे। तो सर ये मेटालिन जो डाई है ना सर, ये हम कितना मतलब क्वांटिटी इसका मतलब कितना है, कितना हम लेते हैं, मतलब कंसंट्रेशन इसका कितना होना चाहिए? बेटा इस इसकी पे कुछ कोई फिक्स डिपेंड कर? नहीं है, उसमें जब आप बाउल में डालते हो उसका सिर्फ कलर देखिए। इवन अच्छा अगर जी। आप लेट्स सपोज उसको 10 ml 20 ml भी अगर एक पूरी 1000 ml की डालोगे ना ड्रिप में, वो उसका कलर इतना डार्क हो जाता है कि यू कैन ऑलवेज सी। जब आप इनफर्टिलिटी के लिए करते हो तो कितना डाइल्यूट करते हो? हेलो। जब आप इनफर्टिलिटी के लिए लेप्रोस्कोपी करते हो और डाई टेस्ट करते हो उसमें कितना डालते हो? वो भी इतना है कि जब आपको सिर्फ कलर उसका नजर आ जाए। ऑब्जेक्टिव इज टू सी
कि जी वहां पे ब्लूइश कलरेशन कहाँ से लीकेज हो रही है नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सलाइन डालोगे तो वो फिर जी सर, आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता सही है, ओके, थैंक यू। है। ओके, अगर आपकी आई थिंक ओके, डॉक्टर शनाज की क्लास है इमरान? इमरान भी अभी सो रहा है। डॉक्टर शनाज की मेरे ख्याल है थी तो सही क्लास में, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने ग्रुप में चेक नहीं किया। अगर कोई और क्वेश्चन है तो बता दो, अदरवाइज विल से गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम सर सर ये जो हम नेफ्रोस्टमी ट्यूब डाल लेते हैं उसके बाद फिर हम उसको कब तक निकालते हैं? बेटा जब तक आपकी अंदर से, अगर उसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई अंदर बहुत सारी सॉइलेज है या उसकी इन्फेक्शन है, तो उसको रेस्ट देने के लिए, जब तक आपको लगता है कि जी वो जब तक ठीक नहीं हो जाता, वो टेम्परेरी होती है, उसके बाद जाके आप उसको जाके रिपेयर कर देते हो ताकि आपकी रिपेयर आसान हो जाए। ये उसी तरह है जिस तरह आपको खुदा ना खास्ता पस बहुत ज्यादा हो तो फिर आप सिर्फ ड्रेन डाल के उसको वेट करते हो, जब सारी ड्रेन हो जाती है, एंटीबायोटिक कवर देते हो, उसके बाद फिर आगे करें। सर ड्रेन सर की फास्ट सिग्निफिकेंस सर है। सर इससे इंट्रा हम ऑपरेटिवली बायोप्सी भी यूरिट्रिक इंजरी बता दें? उसमें क्या करना, उसमें तो आसान है। सर उसमें आइडेंटिफाई कैसे होगा? ब्लैडर तो हमें पता लगता है सर कि डोम ओपन हो गया, यूरिथ्रल वो कैथेटर बल्ब है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा सर कि यूरिट्रिक इंजरी हो गई है? बेटा उसमें इंडिको दो चीज, कारण एक अगर तो आपने पूरा काट दिया है, और तो काट के तो जो उसका दूसरा लूज एंड होता है उसमें से यूरिन या फ्लूइड निकलना नजर आ जाता है। अगर उसको आपने टाई कर दिया है, फिर देन यू हैव टू आइडेंटिफाई, उसको पीछे जाके आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये कहाँ से आ रहा है ये, वरना थर्ड इज पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट बाद में आके कंप्लेन करता है अगर पेरिटोनाइटिस के साथ, अगर वहाँ पे लीकेज है, अदरवाइज पेन के साथ, अगर वहाँ पे अपने उसको टाई कर दिया। सर उसी टाइम इंडिको कैरामीन इसमें भी कहते हैं कि आईवी इंडिको कैरामीन बेटा भी डाल चाहिए देते हैं, था। लेकिन मुझे तो आज तक कभी अवेलेबल नहीं हुई यहाँ पे। आप लोगों ने कभी डाल के देखी है कि उसका ब्राउनिश सा कलर होता है, वो अब वहां से लीकेज आपको नजर आ सकती है। दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, लेकिन मुझे पता नहीं, मैंने एक आधी दफा मांगने की कोशिश की थी, मुझे तो मिली नहीं। आज जाके मैं दोबारा थिएटर पता करता हूँ कि डू दे हैव दैट, या यूरोलॉजिस्ट यूज करते हैं कि नहीं करते। पर लिखा हुआ है डेफिनेटली, और इसमें वो ब्राउनिश सा डार्क हो जाता है यूरिन, इसमें वो नजर आता है, लेकिन यू डोंट नो, नॉट वेरी श्योर। सर आपने कोर्ट प्रेजेंटेशन का ना एक आर्टिकल शेयर करना था, तो सर वो काइंडली शेयर कर दें। वो मैंने किया नहीं, इमरान ने दिया नहीं नहीं आपको? सर, नो सर नहीं किया। बेटा मैं ये इमरान को फिर एक सेकंड है, मैं अभी दे देता हूँ, मुझे अब ढूंढना पड़ेगा, मेरे ख्याल है था तो सही कि हिस्ट्री में होना चाहिए। और सर अगर यूरेटरिक इंजरीज के हैं आपके पास तो सर काइंडली वो भी शेयर कर दें। बेटा मैं तो बिल्कुल शेयर करने के लिए तैयार हूँ, पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो? जी सर। और कोलैप्स, चलो ये बेटा मैं दोनों जो है ना, आई विल ट्राई यूरेटर की भी और इन दोनों की मैं आपसे ना वो शेयर करता हूँ। आई लास्ट इमरान एंड उसको मैं देख के आपको जरूर करता हूँ। चलो एनीथिंग एल्स? चलो अगर नहीं है, ओके फिर थैंक यू। सर अगर हमने ब्लडर रिपेयर कर भी लिया है और हमने सील वगैरह भी चेक कर लिया है, तो हम फिर भी यूरोलॉजिस्ट को रिकन्फर्मेशन के लिए बुलाएंगे? क्यों? एग्जामिनर कहेगा आप तो यूरोलॉजिस्ट बन गए हैं, आप भी सब कर रहे हैं। देखो जी मैं अगर हम कंसल्टेंट हूँ, रिपेयर कर भी देते हैं तो फिर भी यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है। आई डोंट थिंक सो। अगर यूरोलॉजिस्ट का आपका ख्याल है कि आप नहीं कर सकते, फिर तो शुरू से ही बुलाओ। यूरोलॉजिस्ट आके क्या दोबारा सारी खोलेगा फिर दोबारा रिपेयर करेगा?
और क्यों बुलाना क्यों चाहते हो वैसे? मैं जस्ट फॉर माय ओन इन्फॉर्मेशन। कि ब्लैडर इंजरी हुई है ना, कि वो उसकी डोमेन है, तो वो अगर वो कहेगा आप बोले ये तो आपकी डोमेन ही नहीं आपके है, ये तो डिपार्टमेंट में कभी ब्लड इंजरी हुई? यस सर, यूरोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं सब में बुलाते हैं? मोस्टली। वो तब तक हम रिपेयर कर चुके होते हैं जब तक वैसे मोस्टली वो आते हैं। फिर आके क्या वो बस करते हैं? देखते हैं, ओके करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि यूरोलॉजिस्ट को हर जगह बुलाना बेटर जरूरी। मैं जहाँ पे यहाँ यूरेटर ऑरिफिस और इसका आपको लग रहा है, ये आपको सस्पिशन हो रहा है कि आपको अनफाइन नहीं हो रहा, वहां पे जरूर बुला लो। पर रूटीनली तो हम तो बिल्कुल नहीं बुलाते। बट ठीक ही रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मरीज। कहीं रिकमेंडेड नहीं है कि आपने सिंपल ब्लैडर रिपेयर पे यूरोलॉजिस्ट को बुला के, जो आपने सील चेक कर ली है एंड इट इज फाइन, फिर ठीक है। लेकिन आपने अगर रिपेयर कर लिया फिर भी सील में लीकेज है, फिर ऑफ कोर्स आप यू थिंक जी कि हमारी रिपेयर प्रॉपर नहीं हुई, या आपको लगा है कि इसकी एक एज मिस हो गई है कहीं, तो फिर जरूर उसको बुला लो। ओके थैंक यू सर, बस मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही थी कि नहीं, तो एग्जाम में भी उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि यूरोलॉजिस्ट ने कब इन्वॉल्वमेंट होनी है। हाँ, अगर आप कहते हो आपका कोई सीनियर कंसल्टेंट भी अवेलेबल नहीं है, कुछ और नहीं है, और अगर देयर इज नोबडी एल्स हु इज अवेलेबल, फिर आप यूरोलॉजी वालों को जरूर बुलाओ फॉर योर हेल्प। और अगर आप ही सीनियर मोस्ट हो, जो इंशाल्लाह सारे आप जाके बन जाओगे, एंड इफ यू थिंक यू कैन मैनेज इट, या आपका इतना एक्सपीरियंस है तो ठीक है। अगर उसका कंसल्टेंट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आप जरूर बुला के उसे कर दो। देखो, पेशेंट को तो नहीं एट स्टेक करना या जबरदस्ती करना कि सब कुछ हम ही कर लेंगे। सर सेफ साइड पे अगर एक कॉल दे दें, फोन कर लें, क्या फर्क पड़ता है? सर कर बहुत लो। से सेटअप है जिनमें रिलीफ नहीं जिसमें नहीं करते खुद रिपेयर करने वाले, यूरोलॉजिस्ट आता है ओटी के अंदर, फौरन आ जाता है। नहीं, ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी अपनी करने वाले की स्किल्स और एक्सपीरियंस कितना है। सर लियाकत तहसील कराची में जब भी होते थे वो कॉल जरूर देते थे। वो फिर उसको शायद प्रॉब्ली कवर कर रहे हैं फ्रॉम लीगल एस्पेक्ट। जी जी सर, वो कवर करते थे, और बहुत से हाँ, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में भी दे गिव कॉल, नहीं सर, इन्फॉर्म ब्लैडर करते हैं। रिपेयर तो खुद ही कर लेते थे। मैंने भी लियाकत नेशन में काम किया हुआ है। हमारी कंसल्टेंट तो खुद ही करती थी मोस्टली। अगर डिपेंड करता है इंजरी पे भी, अगर इंजरी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है तो उसके लिए हाथ से कॉल दी जाती थी। अदरवाइज हर ब्लैडर इंजरी पे तो नहीं, क्योंकि मैंने भी असिस्ट किया अपनी कंसल्टेंट को, वो तो हर कॉल इंजरी पे तो कॉल नहीं देती थी। नहीं बेटा, अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जो उस टाइम आपका सीनियर कंसल्टेंट है, उसके जी सर, एक्सपीरियंस जी सर, पे और उसका कॉन्फिडेंस पे कि जी सारा कुछ ठीक हो गया। जी सर। ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर द पेशेंट इज फाइन। ऑब्जेक्टिव इज कि उसका बाद में फिस्टुला ना बने। ऑब्जेक्टिव इज के बाद में उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस ना हो जाए। अगर वो कंफर्टेबल है, बिल्कुल ठीक है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। वरना तो बुलाना हो, जब कई बार बहुत ज्यादा एडिशंस होती हैं तो हम सर्जन्स को नहीं बुलाते। जी सर। अगर सर सर कुछ केसेस में तो पहले से ही ऑन बोर्ड रखा हुआ होता है कि आज जो है हाई रिस्क सर्जरी है, तो यूरोलॉजिस्ट ताकि अवेलेबल हो फॉरन। यस ऑफ कोर्स, लेकिन प्रीवियस 2 पे तो नहीं बेटा बुलाते हैं। लेकिन सर वो एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड कोई हाँ, सर्जरी हो ना, तो उस पे फिर ऑन कॉल सर्जन और वो यूरोलॉजिस्ट जो है वो ऑन बोर्ड होते हैं बिफोर सर्जरी। पहले से ही ऑन बोर्ड रखा हुआ होता है, इन्फॉर्म किया होता है कि आज हम ये वो सर्जरी करने प्रिपरेशन वाले में हैं। आपकी आएगी। तो आपको पता है कि आपने ग्रेड 4 की किसी सर्जरी करनी है, एंडोमेट्रियोसिस की, या पहले उसकी 2 या 3 सर्जरीज हो चुकी हैं, तो फिर उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसकी काउंसलिंग पेशेंट की डिफरेंट होगी और उसकी प्रिपरेशन तो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो यू हैव टू सी। चलो बेटा, आई थिंक आई विल बी डन, देन गुड लक एंड देन सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके। थैंक यू सर। वेलकम।